chapter number 14 of 10th science, and that the topic is that of our environment, and this is the summary and the highlights. Now, what is environment? Anything which is around us, that is our surrounding. For example, कितना अच्छा लगता है वो झरना गिर रहा है, इतने मस्त मस्त फ्लावर्स, प्लांट्स, कितना मस्त लगता है अगर इसको हम बनाए रखें तो बस। तो यही हमारा एनवायरनमेंट होगा। अगर हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मानो की बिल्डिंग्स वगैरह बना तो वो भी एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज एनीथिंग व्हिच इज अराउंड अस। यस, बादल, ताला, पानी, पंछी, तारे, आकाश, धरती, जो कुछ हमको दिखता है वो सब हमारा एनवायरनमेंट। So what is environment? Environment is nothing but anything which is around us, that is environment. And now what is ecosystem? Ecosystem basically consists of two parts, biotic components and abiotic components. As the name itself indicates, bio means living, means anything like living organisms, plants, animals, marine life, etc. All they are forming part of biotic components. And what are the abiotic components? They are rain, wind, soil, temperature, pressure, minerals. They all are abiotic or non-biotic. So broadly we may say an ecosystem may be classified as natural and artificial. Now what are the biotic factors? They are basically three: producers, consumers and decomposers. Biotic producers means any this autotrophs which can produce this energy source. For example, herbs, plants, trees, which can synthesize their own food, which are the creators of the food, which produces the food. They are known as producers, and they are the part of biotic factors, the very primary part, that is producers. Now, what are the consumers? Consumers are those organisms, those living items which actually feeds upon, which actually consumes the producers. They are known as consumers. We are also human are consumers, right? And what are the decomposers? ये जो मतलब कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स अगर मर जाते हैं तो वापिस उसको मिट्टी में मिलाने का काम जो करते हैं उसको डिकम्पोजर्स करते हैं, कहते हैं। मतलब कि छोटे छोटे बैक्टीरियाज या फिर मानो कि सेप्रोफाइट्स वगैरह जो कुछ भी है वो इन प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को वापिस गला के मिट्टी का था मिट्टी में मिल जा, जहां से आया था वहां से जा, जहां से आया था वहां वापिस मिल जा। ये चमत्कारी काम कौन करते भैया? ये डिकम्पोजर करते। अगर ये ना होते हमारे पास तो आप दुनिया में मानो कि चारों ओर मुर्दे और मुर्दे ही होते। ठीक है, सो वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू दिस डिकम्पोजर्स। या नाउ व्हाट आर द अबायोटिक फैक्टर्स? एनीथिंग व्हिच इज नॉट लिविंग। लेकिन याद रखना, एक जो वायरस है उसके बारे में बहुत, अभी जो कोरोना वायरस ने बहुत परेशान किया, लेकिन याद रखना वायरस के बारे में अभी भी प्रॉब्लम है कि वो भैया लिविंग है या नॉन लिविंग। बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली दैट इज इन बिटवीन, ना तो वो लिविंग में गिना जाता है ना ही फुल नॉन लिविंग में, तो ये इसको छोड़ देते साइड में। नाउ व्हाट आर द अबायोटिक फैक्टर्स? विंड, वाटर, सनलाइट, सोल, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ जो कुछ दिख रहा है, जो जिसमें जान नहीं है, जो हिलता डुलता नहीं है, जो मतलब कि हमको लगा कि इसमें कुछ भी लिविंग एक्टिविटीज नहीं, वो सारा का सारा अबायोटिक फैक्टर्स है। सो एग्जांपल इटसेल्फ, राइट? बायोटिक कुछ और जहां पर ये मतलब ट्रीज, प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स वगैरह है। अबायोटिक सन, पेबल्स, माउंटेन्स। Now organisms, there are actually three type of organisms: producers or autotroph plants, and green algae, they are producers. Consumers or heterotrophs. For example, herbivores, carnivores, omnivores, pesticides, they are heterotrophs or consumers. Now what are the herbivores? Herbivores are those which actually eats the autotrophs, right? For example, grass autotroph है। Plant, for example, mango, प्लांट वो ऑटोट्रॉफ है क्योंकि वो खुद के स्टार्च, खुद की एनर्जी खुद बनाता है। उसको कौन खाता है? हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में तीन आते हैं: हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। पहले ये तीन और चौथा पेस्टिसाइड। So what are the three types of the organisms? Basically they are producers, consumers and decomposers. Producers produce their own food. For example, all autotrophs, plants, green algae, etc. They produce their own food. And consumers are who? They are heterotrophs. They are actually dependent upon autotrophs, right? Now there are three types of the consumers: herbivores, carnivores and omnivores, right? So what are the herbivores? Herbivores are herb consuming animals, right? For example, deer, cow, buffalo, they actually eat the plant, so they are actually herbivores. Now what are the carnivores? मांसाहारी। herbivores मतलब कि शाकाहारी। जो कार्निवोर्स मतलब कि जो मांस को खाते हैं, फॉर एग्जांपल
हिरन को खाता है सिंह, तो सिंह हो गया कार्निवोर्स। और व्हाट आर द ओमनिवर्स, जो मांसाहारी भी और शाकाहारी भी हो। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, कुछ बर्ड्स जो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं और दाने को भी खाते हैं, राइट। आम को भी खाता है और इंसेक्ट को भी खाता है, तो वो ओमनिवोर्स हो गया। इंसान मच्छी भी खाता है, फिश भी खाता है और चावल भी खाता है, तो हम लोग ओमनिवोर्स में आते हैं। एंड व्हाट आर द पेस्टिसाइड्स, एक्चुअली विच आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। अपना जो फ्रेंड है वो अपने पर डिपेंडेंट रहता है, वो कुछ दिखाना थोड़ा सा, वो अपना पेस्टिसाइड है, ऐसा समझना, क्योंकि वो हम पे डिपेंडेंट है। वो हमारा लहू चूसता रहता है, भैया दिखा दे सर, मुझे देख रहे दिखा दे, तो ये मतलब कि पेस्टिसाइड हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल अंबर बेल, ठीक है, वो अपने खुराक के लिए, अपने फूड के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, राइट। नाउ व्हाट आर द डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स का इस दुनिया में बहुत ही बड़ा रोल है। एज आई सेड, वो मिट्टी को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। हम लोग जब मर जाते हैं तो हमारी जो मतलब ये शरीर वगैरह है, प्लांट्स का जो मतलब कि पार्ट्स हैं, उस सब को वापस मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं वो डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइट्स। उसमें बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह वगैरह होते हैं। Now let us talk about the food chain. Basically 3 parts: producers, consumers and decomposers, as I already said. Now autotrophs fix the solar energy. Herbivores eats away those autotrophs. Those autotrophs are eaten by herbivores, right? And those herbivores are eaten by the small carnivores. For example, चूहे को कौन खाता है? Snake खाता है, ऐसे. And those small carnivores are eaten up by the large carnivores. For example, tiger, सिंह वगैरह वगैरह. Now this is the पिरामिड, एनर्जी पिरामिड। और ये सबसे नीचे जिसमें प्रोड्यूसर्स रहता है, उसमें 100 crores और मिलियंस बिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मानो के ऑटोट्रॉफ्स रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी मानो की मेंबरशिप है। उसके ऊपर आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। जे फॉर एग्जांपल डियर वगैरह, उसको खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल मानो कि हिरन को खाता है, उसके ऊपर आता है टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो सबसे टॉप में। ह्यूमंस आर हैविंग द टॉप पोजीशन इन द फूड साइकिल, हमको कोई नहीं खाता है। और ये 3 फूड साइकिल के एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को खाया डियर ने, डियर को खाया बाघ ने, और उसी तरह से मतलब कि प्लांट्स को खाया इंसेक्ट ने खाया फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया चील ने या फिर गुरुड ने, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट फूड चेन। एक मानो कि मरीन लाइफ की भी है, मरीन प्लांट है, उसको खाया मानो कि स्कॉर्पियन ने, उसको खाया मछली ने, उसको खाया मानो कि बगुलो ने, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट food cycles, food chain. But in green plants, green plants actually hardly capture 1% of the solar radiation. और एक लेवल से दूसरे लेवल पर हार्डली 10% ट्रांसफर होता है, तो बाकी की एनर्जी भैया कहाँ जाती है? क्योंकि 10% मानो कि ग्रास में से मानो कि हिरन में आई, हिरन से 10% एनर्जी मानो कि सिंह में आई, तो बाकी की जाति कहाँ है? एक्चुअली वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी पिरामिड, क्योंकि सनलाइट अगर इतनी ज्यादा है, सनलाइट में से प्रोड्यूसर्स मतलब कि प्लांट्स वगैरह इतनी लेते हैं, उसमें से हर्बिवोर्स के पास इतनी आती है, कार्निवोर्स के पास इतनी आती है, और टॉप कार्निवोर्स मानो कि वह सिंह, बाघ वगैरह उसके पास इतनी आती है। सो एक्चुअली इट्स लाइक अ पिरामिड, सो दिस इज नोन एज एनर्जी पिरामिड। इन एग्जाम यू मे बी आस्क्ड, डिफाइन द एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड इज नथिंग बट द transmission of energy from lower level to higher, where at the lower level you will find millions of different living organisms, but as you go on top, as you go on towards the upper section, the number of members will go on shrinking. Hence there is a shape like triangle, there is a shape like pyramid, hence it is known as energy pyramid. Now these are the trophic level. First there is primary producers, they are mostly plants and they are known as autotrophs. Second level, that is primary consumers, they are herbivores. Third, that is second consumers, they are mostly primary carnivores. And fourth level, that is tertiary consumers, they are mostly secondary consumers like golden eagle, kit fox, etc. Now what is food web? Actually दुनिया में कोई रूल नहीं है। मोगली का आपने सुना होगा, जंगल का कानून क्या है? मोगली, उसको कौन बोलता है कानून? अकेला बोलता है। हाँ, तो मोगली बोलता है जंगल का कोई कानून नहीं है भैया, कोई कानून ही नहीं है। मतलब कौन किसको खाए कुछ ठिकाना नहीं, इसको ये खा गया, उसको ये खा गया। हमने लिखा है भाई चूहे को सिर्फ स्नेक खाएगा, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, बिल्ली भी आगे तो भी खा गई, लेकिन हम बोलेंगे बिल्ली को यही खाएगा, ऐसा नहीं है भैया। जो मतलब जिसको जहां मिले, जिसकी जहां ताकत हो वो खा जाएगा। जीव जीवस्य भोजनम संस्कृत में कहा गया है, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। So this complex network of different food items intermingled with each other, that is known as food web. So what is food web? Food web is nothing but a
वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ डिफरेंट फूड साइकिल, जिसमें ये पता ही ना हो कि कौन कहाँ किसको खा जाए। बस ऊपर का लेवल वाला किसी भी नीचे लेवल को खा जाएगा, उसके ऊपर का लेवल वाला किसी भी उसके नीचे लेवल वालों को खा जाएगा। लेकिन उसमें यह भी हो सकता है टॉप लेवल वाला नीचे लेवल वालों को भी खा सकता है। So this is a complex cycle, complex network of different food cycle that is known as food web. This is the example of one more example of food web, right? So food web is what? It is nothing but a complex network of different food chains. Now what is the biological magnification of pesticides? So actually it is a reverse pyramid to energy. हम लोगों ने बोला कि एनर्जी ऐसे से कम होती जाती है जैसे ऊपर जाता है, लेकिन actually pesticides, now what are the pesticides? Anything which is harmful to our body, they are pesticides, right? So अगर मानो कि वाटर में 1 ppm, now what is 1 ppm? 1 part per million. अगर मानो कि मिलियन मतलब कि 10 लाख, अगर 10 लाख पानी की बूंदे है, उसमें एक बूंद मानो कि पेस्टिसाइड की हुई, तो उसको प्रोड्यूसर्स मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि मरीन प्लांट्स खाता है, तो उसकी जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है, उसमें 1000 टाइम्स वो पेस्टिसाइड स्टोरेज हो जाएगा। बाकी कचरा सब निकल जाएगा, लेकिन पेस्टिसाइड टिक जाएगा। उसको जूप्लैंक्टन खाते हैं तो उसमें 10,000 जाएगा, स्मॉल फिश को उसको खाएगा तो लाख हो जाएगा, उसके ऊपर लार्ज फिश रहता है तो 10 लाख, और उसे ऐसे 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 चला जाता है। तो एक्चुअली जब वो मानो कि वाटर से फिश ईटिंग बर्ड गोल्डन ईगल तक आता है, तो उसके आते आते तक पेस्टिसाइड्स का सबका एक्यूमुलेशन हो जाता है। And why we humans are affected most? Because we are at the top of food web. We are at the top of food chain. तो सारा का सारा है जो कचरा है पेस्टिसाइड का, वो सबसे ज्यादा हमारे खुराक में आएगा। खुराक नहीं, तो ये सारा का सारा जो कचरा है वो लास्ट में सबसे एक्यूमुलेट होता होता हमारे फूड में आ जाएगा। ठीक है, so this is known as biological magnification of pesticide. So what is the biological magnification? So biological magnification is nothing but the accumulation of different pesticides from one topic to another and another topic to another. So this is known as biological magnification. So now let us talk in technical words. What is the biological magnification? Biological magnification is nothing but the constant accumulation of pesticides from one tropic to another, from one tropic to another, and hence so on. This is known as biological magnification of pesticide, in which the level of the concentration of pesticide will keep on increasing from one tropic level to another. This is known as biological magnification. It is always higher. The most affected animals will be those which will be top in the food web. Now how our activities affect environment? अगर वैसे तो किसी बात के बारे में बोले, who are affecting the environment most? Definitely we the humans. वो बोलते हैं environment को हम बचाते हैं, लेकिन वो ही सबसे environment को ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। So our activities are affecting the environment. How? We are depleting the ozone layer. We are creating piles and heaps rather than say mountains of the waste and electronic waste, that is known as e-waste. We are depleting our resources, for example, fossil fuels, petroleums, etc. day by day. We are creating tons, billions of the tons of pollution. And now let us talk about the ozone layer depletion. Actually, we know very well that actually we inhale oxygen, and oxygen is very much abundant in our nature. But oxygen is definitely a life-giving element, life-giving molecule to us, but ozone is very poisonous. But at the same time, it is very important in saving our life too. Contradictory, right? Confusion हो गया, but ये सही है। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है, it's life for us, but ozone is very poisonous gas. But it is in the upper layer of atmosphere. It is in the upper layer of atmosphere, and it actually protects us from the ultraviolet rays, which are very harmful to our body. Now, how this ozone is formed? Actually, there are two elements, two atoms of oxygen. When combined with each other, they form O2. Two oxygen atoms, when they combine with each other through covalent bond, they form O2, and this O2 we actually inhale, right? But in the presence of ultraviolet, in the upper atmosphere, this O2 is broken down. This covalent bond between these two oxygen atoms is broken down, and they become independent OO. They become independent atoms. Now this single independent atom of oxygen, when combined with the oxygen molecule O2, then we get the O3, that is ozone molecule, right? And now this ozone layer, which is in the upper atmosphere of our environment, it actually protects us from the harmful ultraviolet radiation, right?
And it has been recently seen that this ozone layer is getting depleted, particularly above Antarctica. और देखा गया कि धीरे धीरे भैया ये होल तो बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है। अब आसमान में जाके कौन इसको सिलेगा भैया, सिलाई कर देगा? ये तो बढ़ता ही जाता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों को चिंता हुई, अरे भैया धीरे धीरे ये अमेरिका तक आ गया, साउथ अमेरिका तक, अब तो ब्राजील तक आएगा, फिर क्या करें? सोचा कि ये किसके कारण टूट रहा है, स्टडी की। तो स्टडी में पता चला कि धीरे 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 ये होल तो बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। ग्राफ में देखो कितना धीरे 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 से कितना बड़ा होता गया। तो फिर पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो एक टाइम सारी दुनिया जाग गई और पूरा का पूरा CFC पर बांध लगा दिया कि जिसके जिसके कारण ओजोन टूटता है उस पर बांध कर दो। और आपने देखा कि टिल मतलब 20 आते तक, इस साल तक आते तक, नाउ इट्स इन द डिमिनिशिंग स्टेज। अब ओजोन लेयर ठीक हो रहा है, ये खुशी की बात है। सो नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन। अभी इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन हो गई, अब डिफाइन करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन। सो इट इज अ थिनिंग ऑफ ओजोन गैस लेयर इन द एटमॉस्फेयर। हमारा जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें पूरा का पूरा ओजोन का एक लेयर है। ये अर्थ है, उसके चारों ओर ओजोन का एक लेयर है। उस लेयर में जो थिनिंग हो रहा है, पतला हो रहा है, टूट रहा है, उसको हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। डिप्लेशन का मतलब कम हो जाना। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि भैया इसमें क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर मेन एलिमेंट व्हिच कीप्स ऑन डिस्ट्रॉइंग द ओजोन मॉलिक्यूल्स। जो O3 है उसको कट करता है। कौन करता है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और ये क्लोरीन और ब्रोमीन कहां से आते हैं भैया? ये आते हैं CFC से। And now what is this CFC? CFC, yes, she is right. CFC means chlorofluorocarbon. What is CFC? It's chlorofluorocarbon. This chlorofluorocarbon प्रोड्यूस करते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन। एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन है वो मेन मतलब कि दुश्मन है जो ऑक्सीजन O3 ओजोन को तोड़ देते हैं। So what are the reasons of this ozone layer depletion? Chlorofluorocarbon, that is the main culprit. दूसरा आता है फायर एक्सटिंग्विशर गैसेस। तीसरा आता है एरोसोल स्प्रे। देखो चुन्नू, देख मुन्नू बोलेगा वाह चुन्नू तेरे में तो क्या गंध आ रही है। अरे भैया वो गंदी एरोसोल स्प्रे है, जिस केमिकल्स हैं जिससे मतलब ये क्लोरीन ब्रोमीन निकलता है, मत लगाओ। उससे अच्छा है कि अच्छे से साबुन से नहा लो। खुशबू ना आए कोई बात नहीं, बदबू ना आए, ठीक है। क्लीनिंग सॉल्वेंट्स, सफाई करने के जो केमिकल फैक्ट्रीज में सॉल्वेंट्स रहते हैं वो एडेसिव्स, गम वगैरह, ये सारे के सारे जो है उसमें से CFC वगैरह होता है, या फिर मानो कि क्लोरीन ब्रोमीन निकलता है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। हालांकि अभी काफी कम हो गया है। सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन? सबसे बड़ा होता है स्किन कैंसर एंड रिलेटेड डिजीज टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब कोई भैंस बोल नहीं पाएगी उसका मतलब ये नहीं कि उसको कैंसर नहीं होता, उसको भी होता है। वो काली है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें दिखेगा नहीं, उसको भी दिखेगा भैया, काला होगा, जरा पास से देखो, ठीक है। सो स्किन कैंसर एंड रिलेटेड डिजीज टू ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। एडवर्स इफेक्ट्स इन फ्लोरिंग एंड फोटोसिंथेसिस, ये कुछ नया है। प्राणी में ही नहीं, प्लांट्स में भी इसकी इफेक्ट होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। एंड इट इज आल्सो हार्मफुल टू मरीन, मतलब कि सी लाइफ एंड सी प्लांट्स आल्सो। मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज किसी को नहीं छोड़ता है भैया। अगर किसी के मन में हो कि मुझे अल्ट्रावायलेट रे कुछ नहीं करता, नहीं भैया, जब होगा तब पता है मैं तंबाकू खाता हूं, मुझे तंबाकू कुछ नहीं करता। लेकिन जब तंबाकू से कैंसर होता है तब बोलता है भैया तंबाकू मत खाना। लेकिन कब पता चलेगा? जब कैंसर हो जाने के बाद। एनीवे, इन शॉर्ट वी में से ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण प्राणी में, प्लांट्स में, वेदर इट इज टेरेस्ट्रियल वेदर इट इज एक्वेटिक, मतलब कि मरीन, सब में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण काफी बीमारियां होती है। सो अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? तो प्रिवेंशन सबसे बड़ा CFC का है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, व्हिच हैज बीन ऑलरेडी बान्ड सिंस 1987। अब CFC क्या है? एक्चुअली हमारे जो रेफ्रिजरेशन यूनिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह, कूलिंग यूनिट्स, उसमें एक्चुअली फ्रेन, अमोनिया वगैरह जैसे गैस यूज होती है जो कूलिंग पर्पस के लिए काफी यूज की जाती है। सो दिस गैस एक्चुअली प्रोड्यूस CFC and these gas have already been banned since 1987 and alternatives which were definitely costlier at that time but they have been chosen कि भाई CFC तो लेना ही नहीं है क्योंकि मानव जात का नामो निशान मिट जाएगा। Avoid pesticides, avoid excessive use of vehicles, eco-friendly cleaning and painting products should be used. So now what is best? जहां भी देखें कंप्यूटर का या फिर मानो कि ह्यूमन मेड वेस्ट चारों ओर है। So how can we define the garbage or waste?
anything which is of not use to human, not use to us, that is a waste for me. For example, आपके पास अच्छा खासा मोबाइल है लेकिन आपको कोई और अच्छा मोबाइल ले दे तो अब पुराना मोबाइल आपके लिए वेस्ट हो, right? Even when it is working. So anything which is of no use to you, that is a waste for you. Now, what are the different type of garbage? Food waste, household waste, industrial waste, and e-waste, right? Now, garbage may be defined in two ways: biodegradable and non-biodegradable. Biodegradable are those waste which can be again converted into soil etc. For example, मिट्टी से आया तो वापस मिट्टी बन जाए. Anything which can again become a land, soil, mineral, that is known as biodegradable. Whereas non-biodegradable are those items which cannot convert back to this soil etc. They are non-biodegradable. For example, plastic, right? So now, what are the results of waste? Increasing trend towards the disposables, desire for the latest technology, meeting consumers' expectations, absence of recycling management, accumulation कि भैया ये मेरे पास हो चाहिए, वो होना चाहिए, और poor management या planning, मैं इतना खाऊंगा और खाना अगर आया उसके बाद वो इतना ही खा पाऊंगा, या फिर ऑर्डर किया ये आइटम मुझे अच्छी लगती है लेकिन टेस्ट किया ये आइटम तो वो मैंने जो सोचा था वैसी नहीं निकली, ये तो कुछ डिफरेंट है. सो दिस इज पुअर मैनेजमेंट, पुअर प्लानिंग. हाउ कैन आई डू पार्टिसिपेट इन रिड्यूसिंग वेस्ट? अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, अपने खुद की बैग लेके जाइए. अवॉइड डिस्पोजेबल्स, वरना आप खुद एक दिन डिस्पोजेबल हो जाएंगे, याद रखना. अवॉइड दिस इज नॉट लग्जरी, एक्चुअली ये बर्बादी है. हाउ कैन आई डू टू रिड्यूस वेस्ट? डिस्पोज ऑफ एट द राइट प्लेस. फॉर एग्जांपल, मोबाइल की बैटरी पूरे तालाब के पानी को गंदा कर सकती है. बेटर टू डिस्पोज इट ऑफ एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कि भैया ये वापस रिसाइकलिंग में भेज दीजिए. आई होप दिस वाज वेरी सेंसिटिव टॉपिक. आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आई होप अगर आपको समझ में ना आया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप कुछ इतना समझे कि मुझे वेस्ट नहीं करना है तो भी मेरे ख्याल से ये वसूल है, ये वर्थ है.